There are so many things in the life and many moral lessons we generally teach you through various activities and whatever celebrations we do in the school. Behind that celebration there is always a motive to promote and to encourage the students and to inculcate somehow values of the life. Dear students, one thing that I would like to share, because this is a customary nowadays when youngsters are having this kind of practice to stay late night, led to bed and led to rise. They have forgotten the early to bed and early to rise. This is the worst thing which is happening in a daily routine. So the importance of the early morning, you have not seen a rising sun even. I don't know how many of the teachers also used to see them. Maybe they get up early in the morning at 5 o'clock and they are quite busy. I'm lucky enough that every day when I go for cycling, I capture the early morning picture. Though I won't be able to show you right now in that way, but still, today I've taken one photograph. This is the sunrise of morning. This is the photograph today I have taken. And I was there for 3 to 4 minutes. When the sun started rising, I was started clicking, and I am having series of photographs from 1 to 10. What is the use? One who is very materialistic can ask this question. What is the use to see the rising sun? As such, there is no theory behind that what you will get. But when you connect with the nature, the rising sun, the flowers, the tree, the air which is blowing when you are walking in the morning, you connect yourself. I don't know whether the English teacher know much better. They have the poem The Daffodils or not. What the poet is writing, a simple poem but very famous poem, Daffodils. They are moving like here and there, and that the poet feels inside connectivity with the nature. Unfortunately, we human beings are not connected with the nature, and that's why all the problems are in the world. Whatever problem you take, if it is an environmental issue, you see we are polluting air, we are polluting water, we are polluting each and everything. Even we are unable to maintain the soil also. The ingredients of the soil we are losing nowadays by using the fertilizers. We are not connected with the nature. We are more concerned maybe, but we are not practicing it, unfortunately. We talk about so many good things. We know this is
a very good thing, but we do not practice. So when you are not connected with the nature, तुम प्रकृति से नहीं जुड़ोगे, और प्रकृति से जुड़ने का जो सबसे पहला साधन है वो है जल्दी उठना। आप सूर्य को अर्घ देते हैं नहीं देते कोई मायने नहीं रखता है, देते तो बहुत अच्छी बात है। सूर्य को जब अर्घ दिया जाता है तो जब उसकी पानी की धारा के बीच में से जब आपने अर्घ दिया तो उसके बीच में एक स्पेक्ट्रम बनता है, वो स्पेक्ट्रम उस रेज को यहाँ आता है और जब आपके सीने पर जब वो पड़ता है तो इसीलिए उसको सूर्य चक्र बोला गया है, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम यहाँ आके गिरता है और वो आपको ऊर्जा देता है जब आप धूप में बैठे हैं। अब साइंस इस बात को प्रूव कर चुकी है कि विटामिन डी की कमी के कारण उसकी वजह से विटामिन B12 की भी कमी होती है। अगर आप लगातार धूप में बैठते हैं तो आपकी विटामिन डी की तो पूर्ति होती है, लेकिन विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है सीधा सिस्टम को रीजेनरेट करने का, जितने एंजाइम्स है बॉडी में वो भी एक्टिवेट होते हैं धूप में बैठने से। आपकी वेन्स एक्टिवेट होती हैं धूप में, बल्कि हमारा जो आयुर्वेद है वो ये कहता है कि कम से कम 30 मिनट धूप में बैठना चाहिए। लेकिन कितने लोग बैठते हैं धूप में? काले हो जाएंगे धूप में बैठने से। इसलिए आप देखिए जिनके घरों में बुजुर्ग लोग होते हैं वो अगर धूप में नहीं बैठते हैं तो उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती, कैल्शियम, उनको विटामिन डी नहीं मिलने के कारण वो डिटेरिएट होनी शुरू हो जाती है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ जो एजुकेशन से सीधे, अब तो कल मंडे से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आप 4 बजे मत उठिए, सर्दी है, मुझे पता है मैं बोलूँगा उसके बाद भी नहीं उठेंगे क्योंकि स्कूल जाना है, इसलिए मजबूरी में जल्दी उठना वो अलग विषय है। लेकिन क्या आपकी प्रैक्टिस है कि यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? कोई भी समय हो, मैं मेरी लाइफ में बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट, अगर मैं बहुत रेयर मान लूं कभी बीमार पड़ा हूं तो मैं शायद लेट से लेट अगर उठाऊं तो 7 बजे, लेट से लेट, या कभी 7:30 बजे उठाऊंगा बीमार होऊंगा तो। ताकि मुझे अपने आप अपनी टांगे दौड़ने लगती है, यूं काटने लगती है, बिस्तर से यूं लगने लगता है कि मुझे 5 बजे से बल्कि मेरी तो 4 बजे से शुरू हो जाती है। मैं यूं ही जबरदस्ती पड़ा रहता हूं कि कब 5 बजे और मैं अपनी यूनिफॉर्म पहनूं, कॉस्ट्यूम मेरा जो भी है साइकिलिंग के वो पहनूं और दौड़ूं, शुरू हो जाऊं ताकि प्रकृति से बात कर सकूं। मैं लोगों को भी बहुत फोटोग्राफ शेयर करता हूं, मैं रोज उनको एक मैसेज शेयर करता हूं। उदयपुर में जो मिलता है वो मेरी इस बात को अप्रिशिएट करता है। अरे सर, आप मॉर्निंग में जो हमको फोटोग्राफ्स भेजते हैं, आप कोई अच्छी बात शेयर करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं कितने बहुत खूबसूरत शहर में हूँ, मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ कि मैं पिछोला के किनारे सवेरे में उन सब पक्षियों से बात कर लेता हूँ। मुझे मोर मिलते हैं, मुझे एक बार पैंथर भी मिला, मुझे सांप तो अक्सर मिल जाते हैं, सांप तो अक्सर उस रोड पे जंगल सफारी इन दिनों तो मैं जाता हूँ तो वहाँ जलबुर्ज से लेकर और सिसारमा तक मुझे एक बच्चा नहीं मिलता, लेकिन ये मिल जाते हैं। ये मेरे दोस्त हैं, मैंने इन पर कविताएं भी लिखी कल, उसमें थी एक, मैं और मेरी साइकिल। वो पत्तियां, वो पेड़, वो मेरे से मूक मेरे दोस्त हैं। जो अनजान आदमी मिलते हैं उनसे भी हरिओम बोलते हैं। तो एक अनकहा रिलेशनशिप है। एक भिखारी, मैंने बोला, एक रैग पिकर्स मिला मुझे। मैं ये बात शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि ये लाइफ लेसन है बच्चों, जो मैं अभी इन दिनों में मेडिटेशन नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा आज मैं चूंकि सुपरविजन के लिए आ गया तो मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। लाइफ लेसन्स मुझे सवेरे जो मिलते हैं, वो एक फटे हाल बिल्कुल चाचा ऐसा गंदी ड्रेस पहने हुए और वो प्लास्टिक की बोतल से इकट्ठी करता है। मैंने उसका इंटरव्यू लिया एक दिन, वीडियो भी शेयर किया। मैंने उससे पूछा कि तुमको ये इतनी बोतलें इकट्ठी करने से तुम्हारा जिंदगी चल जाती है, कितने पैसे कमा लेते हो? तो उसने कहा कभी में 300 मिल जाते हैं, कभी 500 भी मिल जाते हैं। मैंने कहा इन्हीं से? कि हाँ इन्हीं से। फिर मैंने कहा कि तुम
ये करते हो तो तुम्हें क्या लगता है फिर कम नहीं पड़ता? उसने बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा, बाबूजी मैं जिंदगी में मुझे इतना है कि किसी के आगे मुझे अपने हाथ नहीं फैलाने पड़ते, किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ती। द रैक पिकर इज टेलिंग दिस। एक फकीर, बिल्कुल फटेहाल आदमी, यानी अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा है। ये लेसन लाइफ लेसन है। एक दिन एक कुत्ते के पीछे 15-20 कुत्ते पड़े हुए थे और एक गांव की औरत, शायद पढ़ी लिखी भी नहीं होगी, लकड़ी का गट्ठर लेके उस जंगल सफारी के वहां से गुजरी और कुत्ते उसके पीछे पड़े हुए। उन कुत्ते को देखकर मैं रुक गया और मैंने देखा कि वो एक कुत्ते पर 15-20 कुत्ते पड़े हैं। तो उसने अपनी लकड़ी का गट्ठर फेंका और वो तो बड़ी मजबूत से बांध के लाई, फेंका और वो पूरा गिर गया। उसमें से एक लकड़ी लेके और वो उन कुत्ते को पीछे भागी और उनको भगाया, उन सब कुत्तों को। और वो जो 15-20 कुत्ते एक कुत्ते पे पीछे पड़े थे उनको मार के उसने भगा दिया और उसको बचा लिया। मैंने उससे पूछा, भाई यो कई किदो था? कि बापू ये तो गंडकड़ा है पर आप ही तो इंसान है। व्हाट ही सेड, शी सेड कि ये जो है ये तो कुत्ते हैं, ये नहीं समझते, लेकिन हम तो इंसान हैं, तो हमारी जिम्मेदारी तो हम समझे कि इस कुत्ते को, इसके पीछे इतने कुत्ते पड़े तो हम उसको बचा सके। ये जिंदगी के वो लेसन्स हैं जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, जो सड़क पर चलते हुए सीखे जाते हैं, समझे जाते हैं, अंडरस्टैंड किए जाते हैं, इम्बाइब किए जाते हैं। इसलिए बच्चों, मैं तो ये कहता हूं कि प्रकृति से जुड़िए, निकलिए घर के 4 दीवारों से बाहर, टहलिए, अकेले टहलिए, प्रकृति से बातें करिए। देखिए, कभी चांद को देखो। सवेरे जब मैं निकल रहा था, अंधेरा था, तो मैंने आज चांद और तारे दोनों साथ देखे। चंद्रमा और एक तारा था केवल सवेरे। वो भी एक अद्भुत दृश्य था, क्योंकि वो करीब 5:40 हो रहे थे जब मैं निकला। तो वो मुझे देख के बड़ा, वो दृश्य भी अद्भुत लगा कि ये भी एक दृश्य है। और एक भी तारा नहीं, वो आसमान में कुछ नहीं, केवल चांद और एक छोटा तारा। लेकिन कभी आकाश देखा आपने उठा के सर? हाँ, आज शाम को देखना अपनी छत पे जाके कि आकाश कैसा दिखता है। तारे बड़े शहरों में तो दिखते ही नहीं। मुंबई दिल्ली में चले जाओ तो पॉल्यूशन के अलावा कुछ नहीं है। हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स तो 60-69 रहता है, कभी कभी 79 तक चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये शहर भी पॉल्यूट हो रहा है। ये प्रसन्नता की बात है कि हम बहुत सुंदर शहर में। प्रकृति से जुड़िए, प्रसन्न रहिए, तनाव मुक्त रहिए। और हमेशा ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि बादशाह से मैं इंटरव्यू देख रहा था, बादशाह का, इंडिया टीवी पे। तो बादशाह से पूछा कि आप यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो उसने एक बहुत सुंदर बात कही कि मैं 1 साल डिप्रेशन में आ गया था, मेरी कोई एल्बम रिलीज ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है। तो मैंने उन लोगों के साथ रहना शुरू किया जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे वो सफलता का सूत्र मिल गया कि जो लोग आपको खुश रखें उनके साथ रहिए, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करें उनसे दूर रहिए। दिस इज द सक्सेस फॉर्मूला। तो मैंने ऐसे ही, मुझे आया था, मैं तो आज ऐसे ही सुपरविजन के लिए इन्होंने मुझे बुला लिया, तो मैंने आपसे दिल की बात कही आज, है ना, मन की बात कही। मेरी बातें पसंद आती है? सर यस सर और नो सर? नो सर तो कोई बोलेगा नहीं, मैं भी जानता हूं, लेकिन सच है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में पढ़ लेता हूं और मैं सबकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना जानता हूं कि ये बात किसको समझ में आ रही है, किसको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है।
तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी लगती है, मेरी बात सुनना पसंद करते हैं लोग, आप भी पसंद करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि जो बात को रेस्पॉन्ड मिलता है, जब रेस्पॉन्स मिलता है तो बात एक नज़्म है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, हाँ, तो वो दूर तलक जाएगी आपके माध्यम से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।